हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो क्लिप। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਆਰਡਰ ਆਫ ਬੇਸਿਕ ਕਰੈਕਟਰ ਦੀ। ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ ਆਰਡਰ ਆਫ ਬੇਸਿਕ ਕਰੈਕਟਰ ਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ 4 ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਏ। From 4 questions, 2 are based upon aqueous medium and rest 2 are on non-aqueous medium or gaseous medium. Gaseous medium कह लो, हाँ ठीक। तो अपने कोले वो 4 क्वेश्चनों तो अगे अज आपां ऑर्डर ऑफ बेसिक करैक्टर फिर डिस्क्राइब करना है। ये वीडियो क्लिप दे विच अपने कोले कई सारे क्वेश्चन जिहड़े पेंडिंग ने बेसिक ऑर्डर के करैक्टर दे, वो आपां डिस्कस कर देंगे। ज़्यादा आपां इहदे च किहड़े अमाइन्स लैके चलांगे? एरोमेटिक अमाइन्स, जिहदे च बेंजीन रिंग मर्ज होगी। जे एरोमेटिक अमाइन्स ने तो सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਦਾ ਮੇਨ ਫੈਕਟਰ ਰਹੂਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਬੇਸ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦਾ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਲੇਇਸ ਬੇਸ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਕੋਲੇ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੀ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਦਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬੇਸਿਕ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰਲੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘਮਾਈ ਫਿਰੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਬੇਸਿਕ ਕਰੈਕਟਰ ਘਟ ਜਾਊਗਾ। तो मैं इत्थे ये दसना चाहना भी रेजोनेंस होने दे नाल बेसिक करैक्टर घटूगा। बस तुसीं इहदा ख्याल रखना है। लैक्चर नूं मैं कंटिन्यू करदा, ध्यान नाल देखियो। सब तो पहला अपने कोले क्वेश्चन आ ऑर्डर ऑफ बेसिक करैक्टर। सब तो मूरे जिहड़ा अमाइन आ, जिहड़ा सब तो ज़्यादा बेसिक आ, ये इथेन अमाइन आ। ये एलीफेटिक अमाइन है, इहदे च चेन है। जिहड़ा आ वाला अमाइन है ये एनीलीन है, ये एरोमेटिक अमाइन है। ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਰਿੰਗ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਅਮਾਈਨ ਹੈ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬੈਂਜ਼ਾਈਲ ਅਮਾਈਨ। ਮੈਂ ਉਰੇ ਲਿਖਦਾ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬੈਂਜ਼ਾਈਲ ਅਮਾਈਨ। ਬੈਂਜ਼ਾਈਲ ਅਮਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਅਮਾਈਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ ਰਿੰਗ ਵੀ ਹੈ, ਚੇਨ ਵੀ ਹੈ ਤੇ NH2 ਅਮਾਈਨ ਵੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅਲਕਾਈਲ ਅਮਾਈਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਐਲੀਫੈਟਿਕ ਅਮਾਈਨ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਐਨੀਲੀਨ ਹੈ, ਐਰੋਮੈਟਿਕ ਅਮਾਈਨ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ NH2 ਗਰੁੱਪ ਆ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਆ ਔਰ ਇਹ NH2 ਗਰੁੱਪ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਰਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ। ਇੱਥੇ NH2 ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਿੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ, ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਰਿੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਚੇਨ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਚੇਨ ਜਾ ਕੇ ਰਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਫਰਕ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹਣਾ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ। ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ +1 ਕਲਾਸ 'ਚ ਵੀ ਸਮਝਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਲੱਸ ਆਰ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਮਾਈਨਸ ਆਰ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ। ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਆਪਣਾ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਰਿੰਗ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਪਲੱਸ ਆਰ, ਜੇ ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਰਿੰਗ ਤੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਚੱਕਦਾ, ਪਾਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਚੱਕਦਾ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਆਰ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ NH2 ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਰਿੰਗ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਆਰ ਇਫੈਕਟ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਟੇ ਜਦੋਂ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਇਹਨੂੰ ਦਊਗਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਰਥੋ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਔਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਜੂ, ਫਿਰ ਪੈਰਾ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਜੂ, ਫਿਰ ਆਰਥੋ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਜੂ ਤੇ ਵਾਪਸ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਆ ਉਹ ਚੱਲ ਜੂ NH2 ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਜੂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਰੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਣਾ ਵੀ ਐਨੀਲੀਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ ਉਹ ਡੀਲੋਕਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹਰ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਬੇਸਿਕ ਕਰੈਕਟਰ ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਘਟ ਜਾਂਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਕੋਈ ਕਾਰ ਦੀ ਚਾਬੀ ਮੰਗਣ ਆ ਜੇ, ਗੁਆਂਢੀ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਬੀ ਚੱਕੋ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿਓ, ਲਓ ਬਈ ਲੈ ਜਾ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਰਤ ਲਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕਰੈਕਟਰ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਡੋਨਰ ਕਰੈਕਟਰ 'ਚ ਆ ਗਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੋਰ ਲਈਏ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਉਹ ਚਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੋੜ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ, ਜੋ ਵੀ ਆ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਚਾਬੀ ਦੂਸਰੇ ਮੈਂਬਰ ਵਾਸਤੇ, ਗੁਆਂਢੀ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਐਨੀਲੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੈਣ ਆਵੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦਾ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਰਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਆਰਥੋ ਵਾਲੀ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਦੇ ਪੈਰਾ ਵਾਲੀ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਦੇ ਫਿਰ ਆਰਥੋ ਵਾਲੀ ਕਾਰਬਨ ਤੇ, ਫਿਰ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਤੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਦਊਗਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਚਾਂਸਸ ਥੋੜੇ ਨੇ। ਕਿਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ? ਆ ਚੇਨ
कल्ली चेन जिन्हों एलिफेटिक अमाइन कहने या जिन्हों आप अर अल्काइल अमाइन कहने ये मुकाबले ये कोले लोन पेयर ना एनीलीन कोले लोन पेयर देने के चांसिस थोड़े ने तो एनीलीन का बेसिक करैक्टर घट है तो वह रीजन रेजोनेंस है। हुण जे रेजोनेंस होगी तो बेसिक करैक्टर घट जाऊगा बिकॉज लोन पेयर इज नो लॉन्गर अवेलेबल ऑन द नाइट्रोजन ड्यू टू रेजोनेंस इट गोज ऑन डीलोकलाइजेशन ओवर ऑर्थो पैरा एंड ऑर्थो कार्बन्स देयरफॉर इट इज less basic than aliphatic amine and अर अल्काइल अमाइन। तो जेड़ा ये अर अल्काइल अमाइन आ अर मतलब एरोमेटिक अल्काइल मतलब अल्काइल ग्रुप अमाइन एदे च कल्ली चेन आ गई एदे च कल्ली रिंग आ गई एदे च रिंग भी है ते चेन भी है दोनों आ गई तो सब तो ज्यादा बेसिक एलिफेटिक अमाइन हो जाऊगा। एलिफेटिक अमाइन का बेसिक करैक्टर आप पिछले वीडियो क्लिप च एक्वस नॉन एक्वस मीडियम च डिस्क्राइब कर लिया। अज के वीडियो क्लिप च ज्यादातर एरोमेटिक अमाइन्स की ही डिस्कशन चलूगी। मैं उरे ये दसूंगा आ जिहड़ा एक क्वेश्चन तो मैं कर लिया और ये चो मैं ਇਹਦਾ मेन रीजन रेजोनेंस देता। हुण मैं ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ही एक क्वेश्चन होर बनाना वो ध्यान नाल देखियो किहड़ा क्वेश्चन आ। मेरे को डस्टर आ गया जी आ जगह ते डस्टर लेता ते मैं इत्थे एक नवा ऑर्डर तैयार करदा पिया वो ऑर्डर किहड़ा है ध्यान दियो। आ मेरे को एक रिंग है इस रिंग दे नाल नाइट्रोजन नाइट्रोजन दे नाल आपां ने इत्थे NH2 एनिलीन दे विच मुरे आ गया आ जगह दे विच NH दे नाल आपां और एक फेर रिंग ला ली इत्थे आपां लास्ट ते दो रिंग्स जिहड़ियां ने अटैच कर नाइट्रोजन दे नाल एक्स्ट्रा। जे तुसी प्रॉपर वे नाल देख रहे हो तो एदा नाम एनीलीन है इनू फिनाइल अमाइन भी कह दिंदे ने फिनाइल अमाइन इनू कह दिंदे ने डाई फिनाइल अमाइन फिनाइल अमाइन इनू कह दिंदे ने ट्राई फिनाइल अमाइन। हुण मैनूं कोई पूछे भी इन्हां तिन्हां चों सब तो ज़्यादा बेसिक किहड़ा तो मैं कहूँगा आ एनीलीन सब तो ज़्यादा बेसिक आ। इहदे च इक्को ही रिंग आ इहदे च कितनियां रिंग्स आ गईयां दो इह च कितनियां रिंग्स आ गईयां तीन जिन्नियां रिंग्स ज़्यादा आउणगियां उन्ना बेसिक करैक्टर घटूगा क्यों क्योंकि उन्नी ज़्यादा रेजोनेंस हो जू। हुण जे इक्को ही रिंग है तो ये 5 वारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनूगियां जे रिंग्स दो आ गईयां तो रेजोनेंस भी बढ़ जू तो नाइट्रोजन को होर चांसिस घट जाएंगे लोन पेयर रखने के तो जो 3 रिंग्स लग गई 3 फिनाइल रिंग्स लग गई तो रेजोनेंस होर वध हो जिन्नियां फिनाइल रिंग्स ज़्यादा लगणगियां नाइट्रोजन के नाल उन्नी रेजोनेंस वध हो उन्ना बेसिक करैक्टर घट जू। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट आ ये किवें पुछया जा सकदा एक तो आई जिवें दिता होया इस तरह पुछण दे चांसिस नालों आ स्ट्रक्चर नहीं बनाऊगा कल्ले नाम दूगा फिनाइल अमाइन डाईफिनाइल अमाइन ट्राईफिनाइल अमाइन। और यदि एक तीसरी पॉसिबिलिटी की है वो भी देखो थर्ड पॉसिबिलिटी है मैं आ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में हटाना यदि जगह पे मैं की रखदा उपरले ऑर्डर नूं जिहड़ा उपरला ऑर्डर दिता होया ऐसे नूं मैं चाहां तां ऐ लिख सकदा PHNH2 PH twice NH and PH thrice N जेड़ा बेटे उरे PH है this PH belongs to phenyl group and it belongs to C6H5। ध्यान च रखियो जे तुसी मेरा पिछला वीडियो क्लिप देखिया उस मिथाइल नू ME इथाइल नू ET ते अज वाले वीडियो क्लिप च फिनाइल नू PH और इत्थे P ते H दोने स्मॉल ने जे तुसी P स्मॉल ते H कैपिटल ले लो तो यह PH इक्विलिब्रियम वाली बन जू जिन्हों पावर ऑफ हाइड्रोजन आइंस कहते हैं तो H वड्डी नहीं पानी छोटी पानी है जो फिनाइल लिखना है माड़ा जिहा ध्यान रखियो ये स्पैशल गल मैं विचों दस गया। एक क्वेश्चन आपने जो वीडियो शुरू किया उदों बना लिया जिहदे च 3 चीज़ों च कंपैरिजन अल्काइल
आर अल्काइल अमाइन ते एरोमेटिक अमाइन। सैकेंड क्वेश्चन आ हो गया फिनाइल वाला। थर्ड क्वेश्चन दे विच मैं की करन जा रहा हूं, देखो मैं आ जिहड़ियां एचां ने इन्हां नाल मैं मिथाइल ग्रुप लगा, दो पासों मिथाइल ला लिया। अच्छा इनू भी मैं इत्थों हटाउणा बेटे। हुण मैं थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करदा ऑर्डर ऑफ बेसिक करैक्टर दा। बहुत सौखा ही काम आ, माड़ा माड़ा चेंजेस आ वो मैं करदा जाऊं, तुसीं समझदे जाइयो। जिथे ना पता लगे उत्थे पॉज करके अपनी कापी के उत्ते लिख ली भी गल नूं मैं सब तो पुछना, चाहे मैनू मैसेज करो चाहे फोन करो, जिवें भी तुहानूं ठीक लगे। आ मैं दो मिथाइल ला ली। अच्छा फिर आ जगह ते मैं एक ही मिथाइल लाया और इस जगह ते बेटे मैं इन्हां चों एक भी थां ते मिथाइल नहीं लगाऊंगा। ये दोने मैं मिथाइल इत्थों मिथाइल की थां ते मैं की ला लिया हाइड्रोजन लगा लिया। हुण मैं इनू इत्थों हटाउणा ते इन्हां दे नाम लिखदा। इहदा नाम है NN डाई मिथाइल एनिलीन, इहदा नाम है N मिथाइल एनिलीन और इहदा नाम कला एनिलीन। ये अज दे लैक्चर दा थर्ड क्वेश्चन है और इस थर्ड क्वेश्चन दे विच की आ, आपां ने एनिलीन रखी आ पर नाइट्रोजन दे नाल मिथाइल एक है दो है या एक भी नहीं, की फर्क पै गया। जेड़ा मिथाइल है आ वाला मिथाइल एक इस तरह का ग्रुप है जिहड़ा आपदे इलैक्ट्रॉन किसी नूं दिंदा, तो पुशिंग ग्रुप आ प्लस आई इफेक्ट आ। तो बेटे जो ये पुश करूगा इलैक्ट्रॉन तो यह बेसिक करैक्टर बढ़ा दूगा। मिथाइल बेसिक करैक्टर नूं क्यों बढ़ाउंदा, क्योंकि मिथाइल अपने इलैक्ट्रॉन भी नाइट्रोजन वाले नूं कर दिंदा, पुश कर दिंदा। ये प्लस आई इफेक्ट शो करदा। तो जिन्ने मिथाइल्स वध लावांगे उन्ना नाइट्रोजन नूं अपना पेयर देना सौखा हो जाऊगा। तो यह 3 डिग्री अमाइन की कैटेगरी च आ गया। ये ज़्यादा बेसिक है क्योंकि नाइट्रोजन के नाल दो डोनर ग्रुप लग गए। मन लो भी मैं कोई चैरिटी करनी चाहना, किते कुछ रुपये देने चाहना, किते कोई मैनूं लग रहा भी इस परिवार की हैल्प की जा सकती है, आ बच्चे नूं पढ़ाया जा सकता, मैं कोई भी इस तरह का काम करना चाहना, मेरे घर दे भी मैनूं हैल्प करन भी बेटे आ कुछ रुपये मेरे वालों भी ले ला, तो वह जिहड़ा परिवार है भला कर दे, तो मैनूं वो काम करना कितना सौखा हो जाऊगा। क्योंकि जिहड़े मेरे नाल जुड़े हुए ने वो भी पुशिंग ने, ये काम करन दे विच मेरी हैल्प करते पे ने। दूजा केस है भी जे मैं किसी की हैल्प करनी चाहना पर मेरे परिवार के मैंबर मेरे तो भी पैसे खिंच रहे हैं, मेरे तो पैसे खिंच रहे हैं भी उन्हों का भला बाद चो करी, पहला सानू दे पैसे, सानू लोड़ आ, तो मेरी टेंडेंसी डोनेट करन दी पैसे घट जूगी। इत्थे मिथाइल ग्रुप सपोर्टिंग ग्रुप है, नाइट्रोजन को सपोर्ट करता पाया भी तो अपने जो लोन पेयर किसी को दे सकता, जिहदे करके जिन्ने मिथाइल ग्रुप वधणगे नाइट्रोजन के नाल वध मिथाइल लगणगे उन्ना उहदा बेसिक करैक्टर वध जाऊगा। ये तो रही नाइट्रोजन के नाल डायरैक्ट अटैचमेंट। हुण आपां ये 3 क्वेश्चनों तो बाद जिहड़े 6 क्वेश्चन होर डिस्कस करांगे, टोटल 9 क्वेश्चन डिस्कस करांगे अपने अज दे वीडियो क्लिप विच। 3 क्वेश्चन हो चुके हैं, वो कैटेगरी अलग सी। हुण जिहड़े 6 क्वेश्चन चलणगे उन्हां दी किहड़ी कैटेगरी होऊगी, उहदे विच रिंग दे नाल अटैचमेंट हो किसी ग्रुप की, जिवें तुसीं ने कार्बोक्सिलिक एसिड दे विच ऑर्डर ऑफ एसडी करैक्टर च देखिया होया, नाइट्रो ग्रुप जुड़ गया, मिथाइल मिथॉक्सी यह जे ग्रुप जुड़ के उहदे एसडी करैक्टर दे उत्ते की असर पैंदा सी। इत्थे एनीलीन दी रिंग दे विच जे आपां ग्रुप जोड़ दईए तो उहदे बेसिक करैक्टर ते की असर पाऊगा, ये आपां डिस्क्राइब करांगे। ध्यान नाल समझण दी कोशिश करियो। मैं इत्थों आ सारा जिहड़ा भी सिस्टम है इहनूं इत्थों हटाता। ये तिन्ने क्वेश्चन जिहड़े ऑर्डर ऑफ बेसिक करैक्टर दे सी उन्हां नूं मैं इत्थों हटाता। हुण मैं तुहानूं की दस्सण जा रहा, इफैक्ट ऑफ ग्रुप्स, इफैक्ट ऑफ नेचर ऑफ ग्रुप्स, किहड़े किहड़े ग्रुप की नेचर आ वो इफैक्ट पाऊ ऑन दी बेसिक करैक्टर ऑफ एनीलीन। साडे कोले एक EDG आ, एक EWG आ। इलैक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लाइक मिथाइल ग्रुप, NH2 ग्रुप, और साडे कोले डोनर आ गया OH ग्रुप, OCH3 ग्रुप, ये डोनर ग्रुप आ गया। विथड्रॉइंग ग्रुप NO2 हो गया, Cl हो गया, COH हो गया, CHO, CN, ये साडे कोले विथड्रॉइंग ग्रुप्स आ गए लग गए।
जिवें मैं दस्सिया भी बेसिक करैक्टर उन्ना ज़्यादा होऊ जिन्ना डोनर ग्रुप लगूगा। तो दो गल्लां बड़े ध्यान नाल सुनने वालियां ने। आ जिहड़े ग्रुप ने इलैक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये बेसिक करैक्टर नूं इनक्रीज कर देंगे। क्यों बेसिक करैक्टर नूं इनक्रीज कर देंगे? क्योंकि ये आपदे इलैक्ट्रॉन रिंग नूं देणगे ते रिंग नाइट्रोजन तो लैण दी बजाय इलैक्ट्रॉन रिंग कोले ऑटोमैटिकली इलैक्ट्रॉन वध जाणगे, तां नाइट्रोजन किसी बाहरले नूं इलैक्ट्रॉन दे सकदा। जे मेरी फैमिली नूं कोई होर बाहरों सपोर्ट करने वाला आ जाए तो उन्होंने मेरे तो पैसे मंगन की लोड़ ना पवे, तो मैं अपने पैसे किसी होर नूं चैरिटी के वास्ते दे सकदा, तो मेरे लिए वो डोनर इफैक्ट वध जाऊगा। और जे कोई बाहरों इस तरह की कोई आइडेंटिटी आ जाए जिहड़ी मेरे पेरेंट्स तो पैसे खिंचे, तो मैनूं उन्होंने सपोर्ट करना पऊ, किसी बाहरले नूं नहीं कर पाऊंगा, तो मेरी वो डोनर एबिलिटी घट जाऊगी। तो इस तरीके नाल इत्थे जे डोनर ग्रुप लगणगे तो बेसिक करैक्टर वध जाऊगा, और जे विदड्रॉइंग ग्रुप लगूगा तो बेसिक करैक्टर घट जाऊगा। दोनों चों दोने ना याद रखो, एक नूं याद रख लो, दूसरा वो आपोजिट कर दो भी जो भी डोनर ग्रुप लाने हैं तो बेसिक करैक्टर वधूगा। हुण इत्थे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट क्वेश्चन इज व्हाट इज ऑर्थो इफैक्ट। ये ऑर्थो इफैक्ट दे विच एसडी का करैक्टर वधदा, तुसीं ने सुनिया हो बेंजोइक एसिड, ਉਹਦੀ ऑर्थो पोजीशन ते जिहड़ा मर्जी ग्रुप ला दो ਉਹਦਾ एसडी का करैक्टर वध जू, जे एसडी वध जू तो बेसिक घट जू। तो ये ऑर्थो इफैक्ट सेम ही होगा, भावें बेंजोइक एसिड वाला लिख लियो भावें एनिलीन वाला लिख लियो, ये सिर्फ ऑर्थो पोजीशन ते दिखाई देगा। जिहड़ा मर्जी ग्रुप ला लो ऑर्थो पोजीशन ते ला लो, भावें डोनर ला लो भावें विदड्रॉइंग ला लो, तो जो ग्रुप लाओगे ऑर्थो पोजीशन ते एसडी का करैक्टर वधूगा ते बेसिक करैक्टर घटूगा। साडा संबंध बेसिक करैक्टर दे नाल है, तो इत्थे ऑर्थो इफैक्ट नूं आपां किवें एक्सप्लेन करांगे भी ऑर्थो पोजीशन ते एनीलीन दी ऑर्थो पोजीशन ते जिहड़ा मर्जी ग्रुप ला लो ਉਹਦਾ बेसिक करैक्टर घट जू कल्ली एनीलीन नालों। इहनूं इंग्लिश च बोलिया जांदा ऑर्थो सबस्टिट्यूट एनीलीन इज लैस बेसिक देन एनीलीन irrespect of the nature of the substituent attached, whether it is electron donating or it is electron withdrawing. It means ऑर्थो सबस्टिट्यूट जिहड़ी एनीलीन है ਉਹਦਾ बेसिक करैक्टर घट होगा कल्ली एनीलीन नालों, भावें ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ग्रुप जुड़िया होया डोनर होवे भावें विदड्रॉइंग होवे। मैं हुणे कह के हटिया भी डोनर ग्रुप बेसिक करैक्टर नूं वधाउंदा ते विदड्रॉइंग घटाउंदा, तां इह कहंदे डोनर ला लो चाहे विदड्रॉइंग कोई ला लो पर ऑर्थो ते लाउणा है तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ बेसिक करैक्टर घटूगा। ये बाय इफैक्ट है, ऑर्थो इफैक्ट ऐसे नहीं कहते ने, ये सिर्फ ऑर्थो पोजीशन ते ही दिखाई दिंदा है। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है। ऑर्थो इफैक्ट के भी दो रीजन दसे जाते हैं, एक स्टैरिक इफैक्ट दसिया जाता, स्टैरिक हिंड्रेंस बढ़ जाती है, एक इलैक्ट्रॉनिक इफैक्ट होंदा। तो ये दो फैक्टर वो रखते हैं, पर तुसी ने ध्यान च रखना है ऑर्थो इफैक्ट एक ऑब्जरवेशन है, एक्सपैरीमेंटल ऑब्जरवेशन है, तो ऑर्थो इफैक्ट दे विच ऑर्थो पोजीशन दे ही मेन गल होगी। ऑर्थो इफैक्ट दे विच एसडी करैक्टर वधदा ते बेसिक करैक्टर घटदा, बस इस चीज़ का ख्याल रखना। हुण मैं इत्थे जिहड़े क्वेश्चन है डिस्क्राइब बोर्ड ते थोड़े बहुते कीते हुए ने, कुछ दसने ने, ये तां कल्ले मैंशन कीते ने, ऑर्डर रखे गए ने। ये जिहड़े ग्रुप ने इन्हां चों किहड़ा ऑर्थो इफैक्ट मतलब शो करूगा किहड़ा नहीं करूगा, उन्हां नूं हुण चंगी तरह मैं इत्थे तुहाडे सामने डिस्क्राइब करूंगा। 6 क्वेश्चन जिहड़े मैं हुण इत्थे तुहानूं दसने ने, एक एक क्वेश्चन नूं ध्यान नाल सुणिओ ते समझिओ। आ मैं इत्थों ऑर्थो इफैक्ट नूं हटाता, आ लिस्ट थोनू चंगी तरह याद होनी चाहिए है, ये पता होना चाहिए भी किहड़े ग्रुप की नेचर किहो जी है। आपां रिश्तेदारां नाल वरतदे हैं तो सानू रिश्तेदारां नाल वरत के पता लगदा भी आ रिश्तेदार इहो जिहा जिहड़ा जदों आउंदा सानू कुछ दिंदा, पैसे दवे, फ्रूट दवे, कोई खिडौना दवे, कुछ भी दवे, इहदा डोनर इफैक्ट आ। एक आ रिश्तेदार आ जदों साडे घरे आउंदा इहने मंगना ही आ कुछ भी मंग ले, तो यह विदड्रॉइंग है। तो नेचर है, ये बाय नेचर होंदे ने ते नेचर नूं ध्यान च रखना पऊ। किहड़े ग्रुप साडे कोले डोनर कैटेगरी च आउंदे ने ते किहड़े ग्रुप जिहड़े साडे कोले विदड्रॉइंग कैटेगरी च आउंदे ने, ध्यान च रखने। बेटे मैं इन्हां नूं इत्थों क्लीयर करदा और ये गल दस के जाना भी जिहड़े डोनर ग्रुप ने जदों आपां उन्हां नूं एनीलीन दे नाल जोड़ देंगे
रिंग दे नाल जोड़ देंगे तो बेसिक करैक्टर बढ़ जाऊगा। डोनर ग्रुप्स इलैक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स वुड इनक्रीज द बेसिक करैक्टर ऑफ एनी लीन। ਇਹਦੇ उल्ट इलैक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप वुड डिक्रीज द बेसिक करैक्टर ऑफ एनी लीन। हुण मैं ਜਿਹੜੇ ਉਹ 6 ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਥੇ ਬੋਰਡ ਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਆਰਡਰ ਆਫ ਬੇਸਿਕ ਕਰੈਕਟਰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿਥਾਈਲ ਆ ਪੈਰਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਮਿਥਾਈਲ ਇੱਥੇ ਮਿਥਾਈਲ ਆ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਿਥਾਈਲ, ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਆ ਗਏ। ਚਾਰਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਐਨੀਲੀਨ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਨੇ ਉਹ ਚ ਐਨੀਲੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਥਾਈਲ ਜੁੜਿਆ, ਕਿਸੇ ਚ ਆਰਥੋ ਤੇ ਕਿਸੇ ਚ ਮੈਟਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਚ ਪੈਰਾ ਤੇ। ਹੁਣ ਮਿਥਾਈਲ ਗਰੁੱਪ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ? ਡੋਨਰ। ਜਦੋਂ ਜੁੜੂਗਾ ਬੇਸਿਕ ਕਰੈਕਟਰ ਵੱਧ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੱਥੇ ਬੇਸਿਕ ਕਰੈਕਟਰ ਵਧੂਗਾ? ਪੈਰਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ। ਪੈਰਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਰਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਦੋ ਇਫੈਕਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ। ਪਲੱਸ ਆਈ ਇਫੈਕਟ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਹਾਈਪਰ ਕੰਜੂਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਟਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਿਹੜਾ ਇਫੈਕਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇਊ? ਇੰਡਕਟਿਵ ਇਫੈਕਟ, ਨਾ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ ਨਾ ਹਾਈਪਰ ਕੰਜੂਗੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਮਿਥਾਈਲ पैरा पोजीशन ते सब तो वध इफैक्ट शो करूगा, जिहदे करके पैरा मिथाइल एनीलीन इज मोस्ट बेसिक। फिर किहड़ा आऊगा? मैटा वाला आ गया, उदू घट। फिर इदू बाद एनीलीन ते लास्ट ते ऑर्थो वाला रह गया। उसका की कारण है? लास्ट ते ऑर्थो वाला तां चले गया क्योंकि उत्थे ऑर्थो इफैक्ट लग गया, आ जगह ते ऑर्थो इफैक्ट लग गया। यही दस्सिया सी भी जे आपां ऑर्थो पोजीशन ते कोई मर्जी ग्रुप ला दईए, भावें वो डोनर है भावें विदड्रॉइंग है, ਉਹਨੇ ਬੇਸਿਕ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਤਾਂ ਮਾਰ ਖਾ ਜਾਓਗੇ। ਧਿਆਨ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਡੱਬਾ ਲਾਇਆ ਉੱਥੇ ਰੀਜ਼ਨ ਆਰਥੋ ਇਫੈਕਟ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਆ ਪੈਰਾ ਮੈਟਾ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਆ ਗਿਆ? ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਇਹ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਮੈਟਾ ਤੇ ਹਾਈਪਰ ਕੰਜੂਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਟਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਲੱਸ ਆਈ ਇਫੈਕਟ ਆਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੈਰਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਦੋਨੇ ਇਫੈਕਟ ਆਉਣਗੇ, ਪਲੱਸ ਆਈ ਇਫੈਕਟ ਵੀ ਆਊਗਾ ਤੇ ਹਾਈਪਰ ਕੰਜੂਗੇਸ਼ਨ ਇਫੈਕਟ ਵੀ ਆਊਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਰਡ ਬੋਲਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਵਰਡ ਬੋਲਿਆ हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन, ये जो हाइपर कंजुगेशन है ये दो नाम होर ने। एक नाम है नो बॉन्ड रेजोनेंस, एक दा नाम है बेकर नाथन इफेक्ट। एक्चुअल च ये सारा काम +1 की GOC च करवाया जाता है, और जेडे बच्चे ने +1 च वो काम किया होया उन्होंने डिस्क्रिप्शन चंगी लगूगी, समझ आ जाओ। जिन्होंने नहीं किया होया वो मैनू मैसेज करो, फोन करो, उन्होंने दोबारा दस सकता भी हाइपर कंजुगेशन आपां किवें सीखनी है। वैसे भी जिहड़े अपने ऐप दे विच जमा स्टार्टिंग दे वीडियोज़ ने, हैलो लकेन हैलो रीन ने, उदों पहलां बेसिक कंसैप्ट्स दे उत्ते भी 3-4 वीडियो बने हुए हैं, उन्हां च हाइपर कंजुगेशन एक्सप्लेन किया गया भी हुंदा की है। तुसीं मेरे तो जिहड़े भी पुछणगे मैं उन्हां नूं दोबारा वो वीडियो जिहड़ी ओह सेंड कर दूंगा। अगे चलते हैं। मैं इस पहले क्वेश्चन नूं डिस्क्राइब करता, इहदे विच ही मैं दूसरा क्वेश्चन बनाऊं। देखो किवें आ N इत्थे CH3 हटा के इत्थे NH2 ग्रुप ला ले, आ NH2 ग्रुप, इत्थे भी NH2 ग्रुप। बेटे दो हो गए NH2, इहनूं आपां आ जगह ते P अमाइनो एनिलीन भी लिख सकते भी पैरा पोजीशन ते अमाइनो ग्रुप है ते एनिलीन है, ते इहदे च अमाइनो NH2 ग्रुप भी डोनर है, और पहले दे नाल बिल्कुल सेम डिटो ऑर्डर बन गया दूसरे दा। इत्थे हाइपर कंजुगेशन दी थां ते प्लस आर इफेक्ट आ जाऊगा। ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਪਲੱਸ ਆਰ ਇਫੈਕਟ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਲੱਸ ਆਰ ਇਫੈਕਟ ਕੱਲਾ ਪੈਰਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਮੈਟਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ। ਆਰਥੋ ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੋ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਆਰਥੋ ਇਫੈਕਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਮਾ ਘੱਟ ਬੇਸਿਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕੱਲੇ ਹਾਈਪਰ ਕੰਜੂਗੇਸ਼ਨ ਵਰਡ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਤੇ ਪਲੱਸ ਆਰ ਇਫੈਕਟ ਲਿਖ ਦੇਣਾ। ਅਮਾਈਨੋ ਗਰੁੱਪ ਇਜ਼ ਡੋਨਰ ਗਰੁੱਪ। ਇਹ ਡੋਨਰ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਬੇਸਿਕ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਸੇਮ ਹੈ। ਬਸ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਹੈ ਹਾਈਪਰ ਕੰਜੂਗੇਸ਼ਨ ਉਹ ਮਿਥਾਈਲ 'ਚ ਲੱਗੂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਲੱਸ ਆਰ ਇਫੈਕਟ ਲਿਖ ਦਿਆਂਗੇ NH2 ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ NH2 ਬਾਹਰੋਂ ਲੱਗੂਗਾ ਉਹ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਡੈਂਸਿਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦੇਊਗਾ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਰਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਧ ਜੂ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੈਰਾ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਈਸੋਮਰ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਸਿਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਮੈਟਾ ਵਾਲਾ ਉਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਆਰਥੋ ਵਾਲਾ ਜਮਾ ਲਾਸਟ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਕੱਲੀ ਐਨੀਲੀਨ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਆਰਥੋ ਇਫੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹ ਬੇਟੇ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮਿਥਾਈਲ ਲਾ ਲਓ ਚਾਹੇ NH2 ਗਰੁੱਪ ਲਗਾ ਲਓ। मैं इन्हू इत्थों क्लीयर करदा आ जगह तो
हाँ जी हुण साडे कोले अगला जिहड़ा पैटर्न आ गया वो आ जगह ते आ गया। थर्ड क्वेश्चन चल पिया। इत्थे मैं किहड़े ग्रुप नूं अंडरलाइन करदा मिथॉक्सी। दिस इज मिथॉक्सी। मिथॉक्सी ग्रुप मिथॉक्सी ग्रुप जिहड़ा है वो डोनर ग्रुप है पर इहदा ऑर्डर उपरले नाल मैच नहीं करता। इहदे च की फर्क है पैरा जमा अगे आ गया बिल्कुल ठीक है क्योंकि इत्थे प्लस आर इफेक्ट लगूगा प्लस आर इफेक्ट डन। इहदे च मैटा आ जिहड़ा मैटा वाला सीगा ये पिछे चले गया। मेरा क्वेश्चन है कि इत्थे ऑर्थो इफेक्ट लग्या कि नहीं लग्या तो उहदा आंसर ये है शायद तुसीं सोच रहे हैं ਜਿਹੜੇ सोच रहे ने भी इत्थे ऑर्थो इफेक्ट लग्या वो सही सोच रहे ने इत्थे ऑर्थो इफेक्ट लग्या क्योंकि ऑर्थो वाला लैस बेसिक है तो कल्ली एंडीलीन वध बेसिक है। हुण तुसीं सोचोगे भी आ सब तो पिछे क्यों चलेगा ਉਹਦਾ आंसर सिर्फ की है माइनस आई इफेक्ट। ये माइनस माइनस मतलब विथड्रॉइंग ਜਿਹੜਾ ਮਿਥੌਕਸੀ ਗਰੁੱਪ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਮਾਈਨਸ ਆਈ ਇਫੈਕਟ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਪਲੱਸ ਆਰ ਇਫੈਕਟ ਵੀ ਹੈ। ਪਲੱਸ ਆਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਡੋਨਰ ਮਾਈਨਸ ਆਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿਥਡਰਾਇੰਗ। ਮੈਟਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਆਰ ਇਫੈਕਟ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੈਟਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਆਰ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਆਈ ਇਫੈਕਟ ਆਊ ਔਰ ਆਈ ਕਿਹੜਾ ਮਾਈਨਸ ਆਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ ਆਕਸੀਜन ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿविटी ज़्यादा है उन्ना नैगेटिव आई इफैक्ट ज़्यादा है और नैगेटिव आई होने करके दा बेसिक करैक्टर डाउन हो गया। तो मैटा पोजीशन ते बेसिक करैक्टर क्यों घट गया क्योंकि इत्थे नैगेटिव आई इफैक्ट अपीयर हो गया। मैं उरे रोक के एक गल दस दियां भी ये चारे कंपाउंड ले ले इन्हां चारां कंपाउंड दी कल्ले कल्ले दी पीएच कढ ली जिहदी पीएच सब तो ज़्यादा है वो सब तो वध बेसिक है। तो सब तो पहले ना सारिਆਂ ਦੀ पीएच नोट कर लैंदे ने फिर इन्हां दा ऑर्डर लगा लैंदे ने उस तो बाद एक्सप्लेनेशन जिहड़ी है वो स्टार्ट हो जाती है। पहला पीएच कढ के ऑर्डर लगते हैं फिर एक्सप्लेनेशन होंदी है भी आ कारण करके अगे आ गया आ कारण करके पिछे रह गया। बस तुसीं इहदा ख्याल जरूर रखना है। आ काम कर हो गया थर्ड क्वेश्चन। ऐसे जी फोर्थ क्वेश्चन किवें बनूंगा वो देखो मैं उरे CH3 की थां ते OH लिख लिया इत्थे भी OH लिख रहे हैं आ ठीक है। ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਤੇ ਲਾਸਟ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਜਮਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਲੱਸ ਆਰ ਇਫੈਕਟ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਮਾਈਨਸ ਆਈ ਇਫੈਕਟ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਚ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਇੱਥੇ OH ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ ਹਟ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੌਥਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਨੇ OH ਗਰੁੱਪ ਲੈ ਲਿਆ। ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਰਥੋ ਇਫੈਕਟ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਰਥੋ ਇਫੈक्ट फेल हो गया तो तुसीं सही सोच रहे हैं। क्यों फेल हो गया क्योंकि ऑर्थो पोजीशन ते जिहड़ा OH ग्रुप लग्या ये ऑर्थो वाला वध बेसिक है ते कल्ला एनिलीन घट बेसिक है। ये ऑर्थो इफेक्ट खत्म हो गया। 6 क्वेश्चन ने 6 चों सिर्फ एक क्वेश्चन है और वो भी यही क्वेश्चन है जिहदे च ऑर्थो इफेक्ट नहीं लगता तो उसका रीजन की है पूरे ध्यान नाल देखो ते समझो। आ मेरे कोले आ जगह पे NH2 ते OH है इत्थे लोन पेयर पे आ बाहरों एसिड आ गया ए लोन पेयर नाइट्रोजन ने इनू देता नाइट्रोजन जो लोन पेयर दऊ तो ये NH3 पॉजिटिव बन जू ए OH बन जू। हुण जेड़ा आ बन गया एक आइन बन गया एनिलीनियम आइन बोल लो ऑर्थो हाइड्रोक्सी एनिलीनियम आइन बन गया। ये जिन्ना ज़्यादा स्टेबल होगा आ वाला उन्ना ये वध बेसिक होगा। ये वो कामकार हो गया जिहड़ा आपां पिछले वीडियो क्लिप दे विच डिस्कस कीता सी भी जिन्ने वो कैटाइन्स बनते हैं ज़्यादा स्टेबल होणगे उन्ने कॉरस्पॉन्डिंग अमाइन्स वध बेसिक होणगे। ये ज़्यादा स्टेबल क्यों है इसकी स्टेबिलिटी का रीजन यह आ भी आ ऑक्सीजन इन्हां हाइड्रोजनां दे नाल किहड़ा बॉन्ड बना लैंदी है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ਇਹਦੇ ਚ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पूरे मॉलिक्यूल ਦੇ ਵਿੱਚ आपस में और ये पॉसिबल सिर्फ ऑर्थो पोजीशन ਦੀ ਹੁੰਦੀ है क्योंकि ऑर्थो पोजीशन बड़ी नेड़े है ਤਾਂ ਇਸ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ स्टेबल हो जाता है। जे ये स्टेबल हो गया जे आ स्टेबल हो गया
ਤਾਂ ਆ ਕੀ ਬਣ ਜੂਗਾ, ਇਹ ਬਣ ਜੂ ਮੋਰ ਬੇਸਿਕ, क्योंकि जिन्ना ये ज्यादा स्टेबल हो उन्ना वध बेसिक। क्यों? क्योंकि उन्ना जल्दी ही आपदा लोन पे रहने दूगा, उन्नी जल्दी पेयर दे के त्या बनाऊगा ते स्टेबल हो जाऊगा। तो स्टेबिलिटी का मेन रीजन इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो एक क्वेश्चन तुसी स्पेशल नोट करना है भी इत्थे ऑर्थो इफेक्ट फेल हो गया ते फेल होने का कारण सिर्फ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स ने जिहड़ियां ऑर्थो पोजीशन ते हुंदियां ने। तो इहदे नाल 4 क्वेश्चन कंप्लीट ने। 5th ते 6th क्वेश्चन वो ਇਹਦੇ ਨਾਲ जुड़िया होया। 5th क्वेश्चन स्टार्ट है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ੍ਰੋ ਗਰੁੱਪ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾਈਟ੍ਰੋ ਗਰੁੱਪ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਨਾਈਟ੍ਰੋ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟੇ ਇਹ ਵਿਦਡਰਾਇੰਗ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜੁੜੂਗਾ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕ ਕਰੈਕਟਰ ਘਟੂਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਐਨੀਲੀਨ ਸਭ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਆ ਗਿਆ। ਐਨੀਲੀਨ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਬੇਸਿਕ ਬਿਕੋਜ਼ ਨਾਈਟ੍ਰੋ ਗਰੁੱਪ ਇਜ਼ ਵਿਦਡਰਾਇੰਗ ਗਰੁੱਪ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਜੁੜੂਗਾ ਤੇ ਬੇਸਿਕ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੂਗਾ, ਘਟਾ ਦੂਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਆਰਥੋ ਇਫੈਕਟ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਪੈਰਾ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਮੈਟਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਮੈਟਾ ਵੱਧ ਬੇਸਿਕ ਹੈ, ਪੈਰਾ ਘੱਟ ਬੇਸਿਕ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਪੈਰਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ -r ਵੀ ਹੈ ਤੇ -i ਵੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ -i ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਟਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਫੈਕਟ ਹੈ -i, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰਾ ਉੱਥੇ -i ਤੇ -r ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪੈਰਾ ਵਾਲਾ ਲੈਸ ਬੇਸਿਕ ਤੇ ਮੈਟਾ ਵਾਲਾ ਵੱਧ ਬੇਸਿਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ 6ਵਾਂ, ਉਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕਲੋਰੋ ਗਰੁੱਪ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਦਡਰਾਇੰਗ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਲੋਰੋ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟੇ, ਮੈਂ ਆਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਕਰਦਾ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ Cl ਲਿਖਦਾ, ਇੱਕ Cl ਹੋਰ ਲਿਖ ਲਵਾਂ, ਇੱਥੇ Cl ਲਿਖਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ Cl ਵਾਲਾ ਇਫੈਕਟ ਆ ਇਹ ਫਿਨੋਲ ਚ ਹੋਵੇ, ਕਾਰਬੋਕਸਿਲਿਕ ਐਸਿਡ ਚ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਨੀਲੀਨ ਚ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ ਚ ਆਰਡਰ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਚੱਲਦਾ। ਆ ਆਰਥੋ, ਆ ਮੈਟਾ, ਆ ਪੈਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਰਥੋ ਇਫੈਕਟ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਆ ਪੈਰਾ ਤੇ ਮੈਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਰਾ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ? ਇੱਥੇ ਵੀ -i ਇਫੈਕਟ, ਉਰੇ ਵੀ -i ਇਫੈਕਟ, ਉਰੇ ਵੀ -i ਇਫੈਕਟ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ i ਇਫੈਕਟ ਕਿੱਥੇ ਹੋਊਗਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ i ਇਫੈਕਟ ਆਰਥੋ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ, ਉਦੋਂ ਘੱਟ ਮੈਟਾ ਤੇ, ਉਦੋਂ ਘੱਟ ਪੈਰਾ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ i ਇਫੈਕਟ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਘਟਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੈਗੇਟਿਵ i ਇਫੈਕਟ ਪੈਰਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੱਧ ਬੇਸਿਕ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੂਲਰ ਦੀ ਹਵਾ ਪਹਿਲੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਵੱਧ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਤੇ ਘੱਟ, ਉਦੋਂ ਘੱਟ, ਉਦੋਂ ਘੱਟ। ਤਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ i ਇਫੈਕਟ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਵੱਧਦਾ ਜਾਊਗਾ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘਟਦਾ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। NH2 ਦਾ Cl ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘੱਟ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ? ਬੇਸਿਕ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬੇਸਿਕ ਕਰੈਕਟਰ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਨਹੀਂ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਸਿਕ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਲੈਸ ਬੇਸਿਕ। ਇਹਦੇ ਦੋ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਰਥੋ ਇਫੈਕਟ, ਇੱਕ ਡਿਸਟੈਂਸ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੋਊਗਾ। ਬਸ ਬੇਟੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ, ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ।